Hello everyone. Welcome to Murphy and Family. It's almost end of 2024. And 2025 is right around the corner. Exactly. And we were discussing with each other the ups and downs we had in 2024. And we also wanted to know what Murphy felt about 2024. And then Something great happened. yes, Simone, who is an animal communicator from India, she contacted us and she had a great idea where she connects with your pet and ask your pet about any problems they faced in 2024, any things they learned in 2024, anything they're sorry about, and how we can make their 2025 much better than 2024. And it's perfectly called as Perfect 2025 session. Exactly. So the name of the session itself sounds great. It's a perfect 2025 session. And you can also book this session for your pet with Simone. I'm going to give her contact number in description box. And now we will start The Perfect 2025 for Murphy. exactly. Most important thing I just want to inform you all that this perfect session is already designed by Simone. So you don't have to worry what you need to ask your pet. That's a really good relief that you don't have to think too much. Think about making questions. You have a list of things that she is going to ask, Yeah. and that will give you a good overview of what is how your pet felt about 2024 and what he expects or he or she expects in 2025. So it's kind of a complete package. तो अभी शुरू करें हम चलो मर्फी के साथ. Okay. तो सिमोन से जब मेरी बात हुई, the first thing she told me when she started talking to Murphy, she asked Murphy, "How are you?" And Murphy was so excited. He was so happy. He was wagging his tail, and he told Simon that Simon, I'm really doing great. And he showed her snow because it's snowing here. Yeah. So Simone asked me if it's snowing there or raining there because Murphy is showing her something like very cool things happening here. And the fun thing is Murphy told her, अच्छा सिमोन मम्मा से पूछना मैं उनको अभी थोड़ा कम गड़गड़ करता हूँ क्या उन्होंने नोटिस किया है क्या आपने नोटिस करी? उन्होंने नहीं करी होगी क्योंकि वो 10 मिनट की वीडियो में उनको नहीं पता चलता है लेकिन हाँ ये बात सच है आपने नोटिस किया है हाँ आप हमने कुछ दिन पहले बात करी थी इस बारे में और हम बोल रहे थे कि आजकल मर्फी थोड़ा सा चेंज है उसकी एटीट्यूड में वो थोड़ा सा कम गड़गड़ कर रहा है और उसके बाद जब हमारी बात हुई सेशन में यही बात उठी although we haven't asked anything about this it's completely something he knows and we know yeah. so that was really fun to know. And now let's start with 2024. Like if Murphy had any problem in 2024. So the first thing she asked Murphy, how is his physical health? And we already know like we all already know that he have been going through a lot of hospital visits and things like that so we wanted to know कि उसको कैसा फील हो रहा है उसको क्या बहुत बीमार सा फील होता है ओवरऑल या उसका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है उसको खुद खुद कैसा फील हो रहा है और उसका आंसर क्या था तो मर्फी ने बोला कि ही इज फीलिंग ग्रेट डेफिनेटली ही हैज सम इश्यूज लाइक एलर्जिक इश्यूज दैट बट उसको हम अगर साइड छोड़े बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रीटमेंट फॉर दो स्टफ बट 2024 में मर्फी ने बोला है कि उसको अच्छा फील हुआ है ओवरऑल बट उसको एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो हमें नहीं पता था बट उसने मेंशन किया है सो वी आर थिंकिंग टू टेक हिम टू वेट और घर पे ही कुछ हम उसका ट्रीटमेंट करने की देखेंगे कि उसको लगता है कि उसके बैक साइड पे एक टूथ जो है वो पेन करता है तो उसने सिमोन के थ्रू हमें ये मैसेज कन्वे करवाया है कि उनको बोलना कि थोड़ा सा अगर मुझे मेडिसिन मिल सकती हो या फिर कोई टूथपेस्ट ऐसा हो जिससे भी उसको थोड़ा रिलीफ मिल सके तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग ओके मर्फी को देखो आज सोया है मक्कू तेरी बातें हो रही है ओके वी आर शूटिंग एट नाइट हाँ तो नेक्स्ट उसने पूछा फिजिकल हेल्थ तो हो गया हाउ इज हिज मेंटल हेल्थ उसको लगता है हमारी फैमिली में मुझे और अनिका को जैसा फील हो रहा है उसको वैसा फील होता है so if we are feeling happy he is happy but sometimes when we are tensed we have to think about so many things so we get tense and he become tense as well
ओवरऑल उसने बोला है कि उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिपेंड करता है टोटली कि घर का माहौल कैसा चल रहा है इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेड मी अ लिटिल इमोशनल आल्सो। उसने ये पूछा था कि मर्फी ने क्या रियलाइज किया है 2024 में, एंड ही गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एक्यूरेट आंसर। उसने बोला है कि मैंने ये रियलाइज किया है 2024 में कि जो मेरी मॉम है, मतलब मैं, उसकी हैप्पीनेस मेरे पापा में और मेरे में है। मेरा मेरा ये पूरी एक दुनिया है। और उसने ये सिमोन को बोला है कि 2024 हैज बीन अ वेरी चैलेंजिंग ईयर फॉर माय मॉम बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू मेनी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। बट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो उसने बोला, जो मुझे गूज बम्प्स आए हैं जिस बात को सुन के, बिकॉज ओनली हिमांशु, आई एंड मर्फी नोज, कि जब भी मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ, जब बहुत एंशियस हो जाती हूँ, तो हिमांशु ना मर्फी को बुलाते हैं। मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि मर्फी आ जाओ, थोड़ा सा मम्मी को लिक कर दो, या थोड़ा सा मम्मी के पास बैठो, ये सब चीजें बोलता हूँ, और वो हम कभी दिखाते नहीं है ऑफ कोर्स। मर्फी ने बोला कि मुझे इंक्लूड किया जाता है वैसे भी मोमेंट्स में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मर्फी ने एक और चीज बोली कि उसने एक और चीज रियलाइज करी है कि 2024 इमोशनल तो था मॉम के लिए, लेकिन जो मेरी मॉम है वो थोड़ी सी काम डाउन हो गई हैं और थोड़ी पेशेंट हो गई हैं। जो मैं भी मानता हूँ। पहले मैं लड़ती थी। नहीं, काम डाउन हो गया उसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करते थे। नहीं, पहले क्या होता था, जब हिमांशु कुछ करता था मैं खिंच जाती थी। अभी क्या होता है, जब करता मैं कहती हूँ छठ पर मिट्टी पाओ। तो मैं काम डाउन हो चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट मूव टू 2025 की। 2025 में मर्फी क्या करना चाहता है? क्या करना चाहते हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उठाना है इसको, 2 मिनट हाय बोल जाओ। हाय बोल जाओ। इधर कहाँ आओ। जा रहे हो? वो कहाँ जा रहा है पता है? अपने बेड पे जा रहा है सोने के लिए कि तुम लोग करो, वीडियो बनाओ। हाय बोल जाओ एक बार। पर तो हाय बोलो सबको। आपने तो बोला था आप कम कर करते हो। हाँ। हैं? ये कौन सा कम कर है? एक्चुअली हम बहुत रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ही स्लीपी, जाने दो उसको, ठीक है। जाना तो खुद ही चला जाएगा, अभी तो बैठा हुआ है। ओके फाइन। तो अभी मर्फी को उन्होंने पूछा है 2025 के लिए कि इज देयर एनीथिंग मर्फी वांट्स टू इम्प्रूव इन 2025, जो उसने 2024 में किया था। और जो उसने आंसर दिया है ना, मैं उस आंसर पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। उसने बोला है कि उसने 2024 में बहुत ओवर पोजेसिवनेस दिखाई है हिमांशु और मेरे को लेके। जब भी हम किसी और डॉग को पेट करते थे तो वो अचानक से बहुत जोर से भौंकेगा या फिर उस डॉग पे चिल्लाएगा, वैसे वाला चीज करेगा। मतलब मर्फी ने बोला है कि वो सॉरी है उस चीज के लिए और वो इम्प्रूव करेगा 2025 में, विच आई डू नॉट बिलीव। हमें लगता है कि हम अगर पैच करेंगे तो वो फिर से चिल्लाएगा, फिर सॉरी बोलेगा, फिर बोलेगा मैं आगे से नहीं करूंगा, और फिर रिपीट करेगा। हाँ, तो ये इसने गप मार दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज न्यू ईयर विश, लाइक 2025 में उसका क्या विश है? एक he wants to see more animals. So he wants to visit a zoo, or it might be some shelter, but he wants to visit some place where there are a lot of animals. और रीजन ये है कि जब मर्फी मेरे साथ इंडिया में था, पटियाला में रहते थे हम, तो होता क्या था कि हम बहुत सारे डॉग्स को फीड करते थे, तो वो बहुत सारे डॉग्स को देखता था। मेरे पास लव बर्ड्स थे, तो जब मर्फी आया था मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी आई हैड 4 लव बर्ड्स। तो वो उसने मतलब शुरू से ही, बचपन से ही बर्ड्स के साथ रहा। फिर जब मैं इसको जम्मू लेके जाती थी, हमारे घर पे गाय होती थी, तो मुझे लगता है कि वो बचपन में ना इतने एनिमल्स के साथ सराउंडेड था ना, तो अभी उसको एनिमल्स देखने का मन करता है। और मुझे याद है पटियाला में तो बंदर भी आते थे। सही बात है, और यहाँ पे कोई एनिमल नहीं मिलेगा, डियर ह्यूमन ही नहीं दिखता है यार। एनिमल तो दूर की बात है। नहीं, डियर है यहाँ पे। डियर बहुत कम दिखते हैं, लेकिन वही जो एनिमल्स में उन्हीं को गिनती किया जा सकता है, उसके अलावा कुछ एक्चुअली जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तो यहाँ पे बहुत कम घर थे, तब डियर्स काफी थे, लेकिन अभी घर बहुत बन गए हैं तो अभी डियर कम दिखना शुरू हो गया है ना। अभी नेक्स्ट पूछा उन्होंने कि इज देयर एनीथिंग दैट मॉम नीड्स टू फोकस ऑन। उसने बोला है कि मम्मी को कम स्पेंड करना चाहिए पैसे। मैं अपना घर बचते ही कहा है जो स्पेंड करे, सब तो इसके बिल में लग जाते हैं। मुझे लगता है वो ये बोल रहा होगा कि मुझे हॉस्पिटल कम लेके जाया करो ताकि बिल्स कम दो तुम। तो मेरा ये रहता है कि मर्फी को छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, मेरे को ऐसा होता है कि अगर उसको कुछ इशू हो रहा है ना, तो हम अभी डायग्नोस करा लेते हैं, उससे उसके बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो मेरे को हमेशा उसको छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो मैं वेट की तरफ लेके चलती हूँ उसको। तो एनीवेज उसने यही बोला है कि मॉम को थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए और सेव मोर, सेव फॉर फ्यूचर। हाँ, सेव करना ठीक है। चाहिए। हाँ, एंड इज देयर एनीथिंग डैड नीड्स टू फोकस ऑन।
तो और मेरे को ये फनी लगा, उसने मुझे बोला है कि मेरे को कम स्पेंड करना चाहिए, और उसने बोला है कि पापा को बोलो अगर उनको पैसे कमाने हैं तो 2025 में पैसे कमाए. He said it's going to be a good year for him if he wants to earn money. और उसके अलावा भी मर्फी ने उई ओके और उसके अलावा भी मर्फी ने मुझे बोला कि आई एम हैविंग ट्रबल choosing one thing over another thing. So he said that choose wisely. And No, he did not say that. he उसने said, उसने एग्जैक्टली वो बोला जो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों को बैलेंस करके चलो, ये बोला उसने. हाँ उसने बोला कि बैलेंस बनाए रखो अपनी लाइफ हाँ. में. और उसने ये भी बोला है कि उसको थोड़ा सा पैम्परिंग टाइम ज्यादा चाहिए पापा से. पापा को बोलो उसका फैमिली टाइम ज्यादा स्पेंड करे, मनी भी ज्यादा कमाए और काम भी कम करे. एग्जैक्टली उसने यही बोला कि पापा को बोलो पैसे ज्यादा कमाए, ठीक है, और फैमिली टाइम भी दे, और कुछ छोड़े ना, सब बैलेंस करके चले. हो गया खत्म. नहीं. ओके. और एक और चीज पूछा है कि एनीथिंग वी नीड टू लेट गो. तो उसने बोला है कि you need to let go being very helpful. Very kind and helpful. हाँ, क्योंकि बहुत बार एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ऑनलाइन भी बहुत स्कैम हुआ है. लोगों ने मेरे को ऐसे लूटा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि 50,000 रुपीज लोगों ने मेरे से डोनेशन ली है, ये बोल के कि वी नीड टू सेव सम डॉग्स. मैंने फंड रेज करके उनको पैसे दिए हैं, एंड में उन्होंने आईफोन ले लिए उसके. तो ऐसे ऐसे सीन हो चुके हैं. तो उसने बोला है कि इट्स गुड टू बी जेनरस, लेकिन बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि उसने बोला है कि हम दोनों में से एंड में मैं हूँ जो ज्यादा जिसको इम्पैक्ट होता है. तो या सो दैट्स अ रैप अप. That was what Murphy wanted to say. So अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप भी ये सेशन बुक करें. घर में जो आपके पेट है उनके साथ बात करें. And to complete this process, Simone, she needs only two things. The one is picture of your dog, and the other thing, actual age of your dog. तो आप जो मैं फोन नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो. वो आपको पैकेज कितना कॉस्ट कर रहा है, बहुत अफोर्डेबल पैकेज है, वो आपको पैकेज का बता देगी. एंड द गुड थिंग इज कि आप 2024 के बारे में भी जान सकते हो, 2025 के बारे में भी जान सकते हो. और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस सिमोन के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है. वी डिड वन सेशन लास्ट टू लास्ट ईयर एज वेल, जिसमें मर्फी ने तब भी बहुत सरप्राइजिंग आंसर्स दिए थे जो सिर्फ हम जानते हैं. एंड इसीलिए हमने सोचा इस बार कि ओके वी कैन डू वन मोर सेशन. और इसके अलावा हमने कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे हैं विच इज अ पर्सनल सेशन. तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, जो परफेक्ट 2025 सेशन है, दिस इज अ सेपरेट फ्रॉम अ पर्सनल सेशन. पर्सनल सेशन आपके द्वारा डिजाइन किया जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्जी से क्वेश्चंस कर सकते हो. तो उस सेशन में जब आप लोग हमारा रेफरेंस दोगे तो यू विल गेट 200 रुपीज डिस्काउंट एज वेल. बट प्लीज मेक श्योर कंफ्यूज मत होना, परफेक्ट 2025 में कोई डिस्काउंट नहीं है. इट्स ऑलरेडी वेरी अफोर्डेबल सेशन. लेकिन जो पर्सनल सेशन है उसमें आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू गिव हर आर रेफरेंस. तो अभी मर्फी का पर्सनल सेशन हम स्टार्ट करेंगे जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे. तो स्टे ट्यून्ड.